Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ji Janab. Today I would like to discuss about the reactions in pyridine, six-member ring, that is pyridine. Okay. In the previous class, we have discussed about the six-member ring whose example is pyridine. So, what are six-member ring and definition and its synthesis we have already discussed. Today, we would like to discuss about the chemical reactions occurring in pyridine, which is a six-member ring. Usually, in pyridine, आमतौर पे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आकर करता है. So electrophilic substitution reactions occur in pyridine. तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आकर करता है तो pyridine have as it is a six-member ring, we have six positions. ठीक है. So one of the position having a nitrogen atom as a heteroatom, that is to be considered as a position 1. और इसी तरह इसके adjacent position 2 और फिर 3 और 4 and 5 and 6 हो जाए. So we have 6 positions on pyridine. लेकिन pyridine में electrophilic substitution reaction तो आकर करता है, लेकिन all the 6 positions are not equivalent for the attack of electrophile. ठीक है कि electrophilic substitution reactions आकर करता है pyridine के अंदर, क्योंकि ये भी एक aromatic ring है और आमतौर पे aromatic hydrocarbons में aromatic rings के अंदर क्या होता है, positions जो है वो positions से मुराद के all positions जो है equivalent नहीं होते. ठीक है. Okay. So all the positions are not equivalent in case of pyridine, while in aromatic ring benzene all the positions are equivalent for the attack of an electrophile. तो इस वजह से position number 3 and position number 5 is susceptible for the attack of an electrophile over pyridine ring. या तो electrophile position number 3 पे खुद को अटैच करेगा या position number 5 पे the electrophile will attach itself. So these two positions are more susceptible for the attack of electrophile over the pyridine ring during electrophilic substitution reactions. ठीक है. तो ये susceptible positions हैं. तो अब इसको जरा देखते हैं कि जबकि 5 member rings के अंदर this is just looking like 6 member, this is 5 member, लेकिन 5 member ring के अंदर जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, position number 2 and position number 5 was susceptible for the attack of electrophile. वहाँ पे position 2 और position 5 जो है electrophile के अटैक के लिए मौजू positions थे, लेकिन 6 member ring pyridine के लिए जो है position number 3 और 5 are more suitable positions for the attack of the electrophile. So before going to discuss the examples of electrophilic substitution reaction, I would like to explain that at which position the electrophiles will attach itself with the pyridine ring. So we keep in mind pyridine over the pyridine ring
electrophile can attack position number 3 or position number 5. These two positions are more suitable for the attack of electrophile during electrophilic substitution reactions. तो अभी आगे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है, लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, बहुत सारे. लेकिन ये सारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं खुद को इन दो पोजीशंस पे, हाँ, if already position 3 and 5 occupied by electrophile तो फिर ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच है पोजीशन 3 और 5 के ऊपर, तो फिर ठीक है, पोजीशन नंबर 4 या 6 के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल खुद को अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट्स द रीजन why position 3 and 5 are more susceptible for the attack of electrophile over the pyridine ring? वजह क्या है, क्यों पोजीशन 4 और 6 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं करता? तो थोड़ा सा इसको भी देखते हैं. The reason that why these two positions are more susceptible, what's the reason? So let me discuss the reason that why position 3 and 5 are more susceptible for the attack of electrophile. So let me check. Sorry to say ये कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा, but it's okay. Let me check it. Let me check from the notes. Okay जी अटैक एट पोजीशन नंबर 2. ओके, ये जो है, लेट्स सपोज हमने जैसा कि कहा था कि पोजीशन 3 और 5 आर मोर ससेप्टेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. लेट्स सपोज अगर पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करें, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट पोजीशन नंबर 2, अगर पोजीशन नंबर 2 पे अटैक कर लेता है तो फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे है, सो दिस इज पोजीशन 1. सो अगर मैं इस साइड पे जाना चाहूँ तो दिस इज पोजीशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहूँ तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. इनके पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, तो इसको आप 2 भी कह सकते हैं, 6 भी, इसको आप 2 भी कह सकते हैं. तो अगर आप इस वाइज जाना चाहें तो दिस इज 2. ठीक है, सो दिस इज पोजीशन नंबर 2. अब अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर लें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बॉन्ड इस डायरेक्शन में यू ब्रोकन डाउन टुवर्ड्स पोजीशन नंबर 2 ब्रोकन डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद को अटैच कर लेगा. एज ए रिजल्ट हम जब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2 पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, पोजीशन 3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोजीशन 4 नहीं, पोजीशन 5 पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, पोजीशन 4 पे नेगेटिव, पोजीशन 5 पे पॉजिटिव, और इसी तरह पोजीशन 6 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो अब आपने देखा और इसी तरह तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हुए पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर, दिस इज 1, दिस पोजीशन नंबर 2 पे अगर अटैक कर ले इलेक्ट्रोफाइल तो पोजीशन 3 और 5 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और इसी तरह नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रा कर सकते हैं अगर पोजीशन नंबर 2 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें? वी कैन ड्रा a total of 3 resonating structures. हम 3 resonating structures ड्रा कर सकते हैं, और ये 2 resonating structures तो एक्सो के स्टेबल है, लेकिन ये जो थर्ड resonating structures है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इट इज मोर एंड मोर अनस्टेबल. ये बहुत ही अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना स्टेबिलिटी को शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना ये अनस्टेबिलिटी को शो, सो दिस विल शो अनस्टेबल कंडीशंस, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं, अब हमने देखा कि पोजीशन नंबर 2 पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है जो कि क्लियर नहीं है, आई विल शेयर अनदर पिक्चर टू यू पीपल्स, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि in this case the resonating structure shows that there is a positive charge on nitrogen atom which is a more electronegative and तो वही रीजन बयान कर रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। सो इसलिए हम कहते हैं कि पोजीशन 2 इज नॉट ससेप्टेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और पायरिडिन रिंग। इसी तरह दिस इज अनदर रीजन, ये दूसरा है, इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक वर एट पोजीशन नंबर 4, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा था कि पोजीशन 2, 4 एंड 6 आर नॉट ससेप्टेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, while position 3 and position number 4 are more susceptible or suitable for the attack of electrophile। तो इसका हम रीजन बयान कर रहे हैं। तो अब आपने देखा कि 2 पे अगर करें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कि अच्छी बात नहीं। अब अगर पोजीशन नंबर 4 पे अटैक कर ले तो अब आप देखें, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 4। अब अगर यहाँ अटैक कर ले तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये बांड जो है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स पोजीशन नंबर 4 बांड ब्रोकन डाउन हो जाएगा और इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल खुद को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 4 पे आ जाने से क्या होगा, पोजीशन नंबर 5 पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। sorry, let me maximize the size of okay। अब क्या होगा कि यहाँ पे पोजीशन नंबर ये दिस इज, अगर पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन नंबर 4 सॉरी, अगर पोजीशन नंबर 4 पे अटैक कर ले तो पोजीशन नंबर 5 पे इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज होगा और इसी तरह इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में पोजीशन नंबर 3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें भी आपने देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि बदशगुन बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना तो नेक शगुन है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं और नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना अच्छी बात है। सो इसमें आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 4 पे अटैक कर ले तब भी नाइट्रोजन के ऊपर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं। अब यहाँ देखें, अब अगर अटैक एट पोजीशन नंबर 3, अगर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 3 के ऊपर अटैक कर लेता है इलेक्ट्रोफाइल, तो देखें ये है मेरा पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3 एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 3 के ऊपर अटैक कर लेता है तो देखा आपने देखा ई एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल अटैच एट पोजीशन नंबर 3 के साथ अटैच हुआ। अब क्या होगा, ये वाला बाण इस डायरेक्शन में ब्रोकन डाउन होगा, पोजीशन नंबर 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और इसी तरह दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पोजीशन 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप इसमें देखें, इसमें आपने देखा
कि अब तीनों केसेस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, लेकिन अगर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है, देन 2 आई हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बराबर है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और स्टेबल है, लेकिन बाकी मानदा 2 में तीसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स है। और इसमें तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्योंकि इसमें अगर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि अच्छी बात है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। तो अब चूंकि पोजीशन नंबर 3 पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेते हैं, सो वी विल गेट 3 स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन बाकी 2 केसेस ऊपर जो बयान किए गए हैं, वी गेट 1 अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो कंपैरेटिवली जो है, ये जो पोजीशन नंबर 3 है, ये बेस्ट है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर द रिंग। ठीक है, इसी तरह जो है मैं देखता हूँ कि अटैक एट पोजीशन नंबर 4, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन नंबर 3, आपने देखा कि thus position 3 is feasible, more feasible for the attack of electrophile। ठीक है, सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए पोजीशन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, वो ज़्यादा सुटेबल है फॉर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ओवर द रिंग। अच्छा, और इसी तरह जो पोजीशन नंबर 5 है, इसके ऊपर भी अगर अटैक कर लेता है इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर भी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरिडीन व्हिच इज अ 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4 आर मोर ससेप्टेबल, आर मोर सुटेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर द pyridine ring. Now we will discuss the, ये तो एक क्लू था आप लोगों को जो हमने दिया कि भाई अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें किसमें क्या कहते हैं पायरिडीन रिंग के अंदर, तो कौन सी पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल खुद को अटैच कर सकता है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। सो ये हमने डिस्कस की। अब आप इधर आके देख लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें है नाइट्रेशन रिएक्शन। पहला जो है वो क्या है, नाइट्रेशन। All the electrophilic substitution reaction takes place in aromatic conditions, in drastic conditions, because of the electrons are withdrawn by the nitrogen atoms. Now discuss करते हैं कि भाई जो different electrophilic substitution reactions है वो किस तरह होगी। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले है नाइट्रेशन ऑफ पायरिडीन रिंग, नाइट्रेशन ओवर द पायरिडीन। ये मेरे पास पायरिडीन रिंग है और इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर लेगा, तो नाइट्रो ग्रुप विल अटैच इटसेल्फ एट, इस मैंने जैसा कि कहा था कि नाइट्रोजन जो पायरिडीन रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोजीशन 1। तो ये पोजीशन 1 हुआ, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये माइक किसका ऑन है, काइंडली जो है अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। Okay, next is anyone waiting for 7 participants? Okay, no one waiting for, let me check. Okay. अच्छा भाई, अब हम नाइट्रेशन रिएक्शंस इन पायरिडीन डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो नाइट्रेशन रिएक्शन में द अटैक ऑफ द नाइट्रो ग्रुप ओवर द पायरिडीन रिंग, एंड यू नो nitro group may attach itself or may attack its at position number 3 or position number 4 is 5 is already discussed. तो सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि जब भी हम व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरगो द नाइट्रेशन रिएक्शंस, हम पायरिडीन को लेते हैं और साथ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट बीकर में डाल देते हैं। दोनों को 37 डिग्री सी टेम्परेचर पे गर्म कर लेते हैं, तो उसमें जो है रिएक्शंस के स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शंस में क्या होगा कि हमें 3 नाइट्रो पायरिडीन और 5 नाइट्रो पायरिडीन जो है वो मिल सकती है। ठीक है। तो रिएक्शन किस तरह होगा, तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म ये है कि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके नाइट्रो ग्रुप बना देंगे, यानी NO2 पॉजिटिव बना लेते हैं। किस तरह, KNO3, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर फार्मूला KO और NO2 है। तो ये होगा कि ये वाला जो बांड है, ये वाला बांड इस डायरेक्शन में, ये वाला बांड इस डायरेक्शन में ब्रोकन डाउन होगा टू 1 KO, तो KO माइनस और NO2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, और यहाँ पे H2SO4 का ये बांड इसी तरह ब्रोकन डाउन होगा, तो H और SO4H होगा। तो ये बांड यू ब्रोकन डाउन, तो H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव O नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, तो KOH बन जाएगा और NO2 प्लस बन जाएगा और HSO4 माइनस बन जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो KO, तो H जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो H है वो KOH की तरफ आ जाएगा, NO2 पॉजिटिव चार्ज और HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये सारे अनस्टेबल हैं, ये सारे जो सिचुएशंस है, NO2 पॉजिटिव बन गया जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। सो नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर द ओवर द पायरिडीन रिंग। सो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा किस पोजीशन पे, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3। तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा NO2 जो है पोजीशन 3, 4, 5, NO2 इस पोजीशन पर भी खुद को अटैक कर सकता है। ठीक है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकीला जी। जी, एनी क्वेश्चन? संगाले सर खैर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। सर क्वेश्चंस को नश्ता सर जी का ना जी सर दा लेक्चर बता सो अपलोड का वही पोर्टल वांदे दा लेक्चर बस चिकम उस रवान दे दाब हम अपलोड को मास वीडियो लेक्चर्स दी अगर 13 स्टूडेंट्स वाला नो अगर हम अपलोड को इंशाल्लाह मैं बता उसका समझ के राशि सही है। जी सर। सर बे लगा अपलोड ते दा लेक्चर बाने जमन पुएना शुमजे बे लग रुस तो गोरमा सही है दा खो डेली बेसिस अपलोड को नोर कलम सही है kana। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी सर, तासो गोरी पोर्टल गोरे आगे बाने अपलोड को ठीक है। ओके Okay, जी, थैंक यू। next is sulfonation reaction. Sulfonation reactions में this is a second electrophilic substitution reaction, यानी sulfonation of pyridine, जैसा कि sulfonation of benzene ring, अब जो है sulfonation of pyridine ring। तो sulfonation reaction में सल्फ्यूरिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और दोनों सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करने के बाद सल्फानिक एसिड ग्रुप यानी HSO4 HSO3 पॉजिटिव जो है जो इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं और HSO3 पॉजिटिव जो कि एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक कर लेगा पोजीशन नंबर 3 के ऊपर या पोजीशन नंबर 5 के ऊपर अटैक कर लेगा। अब इसमें हमेशा से हम पोजीशन नंबर 3 शो कर रहे हैं। पोजीशन नंबर 3 इसलिए शो कर रहे हैं कि अगर मानो सब्स्टिट्यूशन सल्फोनेशन रिएक्शंस है तो ख्वा इधर हो दोनों केसेस में हम इसको पोजीशन नंबर 3 कहेंगे। हाँ, अगर हम मज़ीद नाइट्रेशन करना चाहें तो मज़ीद नाइट्रेशन में मेरा नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप जो है इस पोजीशन के ऊपर खुद को अटैच कर लेगा और इसी तरह अगर नेक्स्ट सल्फोनेशन मैं करना चाहूँ तो दूसरा सल्फानिक एसिड ग्रुप इस पोजीशन नंबर 5 के ऊपर खुद को अटैच कर लेगा। लेकिन अगर मोनोसल्फोनेशन रिएक्शन से एक ही सल्फानिक एसिड ग्रुप है तो फिर वो तो हमेशा यहाँ भी पोजीशन नंबर 3 कहलाएगा और यहाँ भी अगर हो
तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोजीशन नंबर 3, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो ये है HSO4। देखिए दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बना, HSO4 नेगेटिव और HSO3 पॉजिटिव बना लेगा। अब जो है HSO3 positive acting as electrophile, this will attack at position number 3 और position number 3 के ऊपर अटैक करके इसका पूरा मैकेनिज्म जो है नीचे दिया गया है, वीडियोस में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से अपलोड करके आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अटैक, अब आपने देखा कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर जो 6 है और 4 जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाता। इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था रीज़न की क्या था, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3 ग्रुप अटैक ऑन नाइट्रोजन will attack on what nitrogen lone pairs electrons, ठीक है, and thus produces a, produces a firm charge on the nitrogen atoms. So ये आप देखें कि SO3 पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये अगर पोजीशन नंबर 1 जो कि नाइट्रोजन है इसके ऊपर अटैक कर ले तो नाइट्रोजन है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल अटैक ओवर द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो ये सिचुएशन बन जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि क्या किस चीज़ को शो कर रहे हैं, अनस्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द केस। सो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। ये भी सल्फोनेशन हो रहा है, लेकिन सल्फोनेशन है पोजीशन नंबर 1 हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप पोजीशन नंबर ये बाकी मानदा पोजीशंस जो है पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जो है विल अटैक एट पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 के ऊपर अटैक से क्या होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो है हमें हासिल हो रहा है। इसी तरह the next is bromination reactions in pyridine। ये मेरा ख्याल से क्लियरली नजर नहीं आ रहा। I will upload another document, ठीक है, for the purpose। So bromination reaction of pyridine, अभी यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, मीन कि ब्रोमो ग्रुप विल बी एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो इसमें जो है द रिएक्शन कैन बी, यानी इफ pyridine is treated with bromine in the presence of FeBr3 or FeCl and charcoal at 300 degrees C temperature, the reaction, electrophilic substitution reactions will occur and we will get 3-bromopyridine. This is also 3-bromopyridine. This is also 3-bromopyridine, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ ऑलरेडी ये पोजीशन ऑक्युपाइड हो सो फिर ये 3,5-डाइब्रोमोपायरिडीन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखा, इसमें क्या है, Br2 तो एक Br के ऊपर नेगेटिव, दूसरे Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव Br है वो एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल अटैक एट पोजीशन नंबर 3 एंड वी विल गेट 3-bromopyridine, ठीक है। लेकिन और दूसरा Br नेगेटिव FeBr3 के साथ FeBr4 नेगेटिव बना लेगा। Now we have another reaction, that is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts acylation reactions or Friedel-Crafts क्या है, Friedel-Crafts methylation reactions और Friedel-alkylation reactions। दो Friedel-Crafts reaction दो तरह के होते हैं, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylations। So pyridines के अंदर जो है Friedel-Crafts reactions नहीं होते। Friedel-Crafts reaction don't follows pyridine don't follows Friedel-Crafts reactions, ठीक है। यानी Friedel-Crafts alkylation, neither Friedel-Crafts alkylation nor Friedel-Crafts acylation reactions।
तो फ्लूइड कार्ब रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। फ्लूइड कार्ब रिएक्शंस तो जैसा कि आप समझते भी हैं, पर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फ्लूइड कार्ब रिएक्शंस जो होते हैं दी जिसमें अल्काइल ग्रुप एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैच इटसेल्फ विद द पायरिडीन aromatic ring or फ्लूइड कार्ब alkylation कहलाते हैं। The introduction of the alkyl group over the aromatic ring is known as फ्लूइड कार्ब alkylation reaction, जबकि the introduction of the acyl group into the aromatic ring is said to be as फ्लूइड कार्ब acylation reactions. So we keep in mind no फ्लूइड कार्ब alkylation and no फ्लूइड कार्ब acylation reactions occur in pyridine. ठीक है, सो ये तो हुई बात। अब चलते हैं mercuration reactions, यानी the introduction of the mercuric group mercuration is said to be as mercuric chloride का रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होना mercuration reactions कहलाता है। तो इसमें ये है कि पोजीशन नंबर 3 के ऊपर HgCl2 तो HgClCl तो क्या होगा, this bond will be broken down to Cl negative, तो Cl negative Hg positive HgCl positive, तो HgCl positive will be acting as electrophile and this will attach itself at position number 3। तो पायरिडीन के पोजीशन नंबर 2 के ऊपर HgCl अटैच हो जाएगा और इसी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा मर्क्यूरेशन रिएक्शंस। ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाया गया है। इसी तरह रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या रिएक्शन ऑफ द अटैक ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और द बेंजीन रिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनो में ये अल्का RLI तो अल्काइल मेटल्स है, तो Li लिथियम इज अ मेटल एंड R जो है ऑर्गेनिक पार्ट है, चूंकि अल्काइल ग्रुप है, so that's why it is said to be as organometallic compound. So the attack of the organometallic compound over the pyridine ring जो है ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब क्या होगा, द बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन टुवर्ड R एंड Cl, क्योंकि मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमेशा से, सो बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन टुवर्ड R, सो Li पॉजिटिव एंड R इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चूंकि है तो लिथियम विल अटैक ओवर द रिंग और इसी तरह लिथियम जो है खुद को पोजीशन नंबर 1 पे 3 पे अटैक कर लेता है, अटैच कर लेता है और यहाँ से जो प्रोटॉन रिप्लेस होगा वो R के साथ मिलके RH यानी कि अल्केन बना लेगा। इसी तरह रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड रिएजन, ये जो है रिएक्शन R विद GNR GN reagents, GN reagent mean reaction with Grignard reagents. Ab now discuss the reaction of pyridine with the Grignard reagent. RMGX, you know, is said to be as the Grignard reagent. So RMGX is the Grignard reagent and this is the pyridine ring. हमारे यहाँ जो रिएक्शन वो जो बाण है that will be broken down at position Mg, R and Mg के दरमियान बाण broken down होगा, R will become negatively charged, Mg will become positively charged, so Mg will have X is already attached with the Mg, so MgX will attach itself at position number 3, so electrophilic substitution reaction complete हो जाएगा और R negative के साथ प्रोटॉन H positive आ जाएगा, अल्केन बन जाएगा। So these are the few reactions in electrophilic substitution reactions we have discussed कि pyridine ring के अंदर substitution reactions होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते। और इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर जो 4 है, पोजीशन नंबर 5 जो है, दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ओवर द पायरिडीन रिंग। और इसी तरह क्यों दीज टू पोजीशन ससेप्टेबल है, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन नंबर 2, 4 या 6 के ऊपर अगर अटैक कर लेता है तो फिर क्या होगा कि फिर हमें मसला ये होता है कि फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड लिसनिंग माय लेक्चर्स। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। Picasa question está. जी मैं हाजिरी ले लेता हूँ। आसिफ रहमान is present and
जी आबिद जलाल खटक is present and Yes, sir. जी Hamza Khan is present and जी ये कौन है गैलेक्सी A10 हु इज़ गैलेक्सी A10 ज़रा फिर आप गिला करते हैं कि मेरी हाज़िरी नहीं लगा देते लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा गैलेक्सी A10 लिखा हुआ है यू डोंट नो हु इज़ ही और हु इज़ शी Shakila is present, Sayyida Ayman Jamshed is present, and next is Zainab Fazal is present. और ये A10 कौन है जिसका मैंने नाम नहीं लिया? Who is she? यार who is he? Galaxy A10. Asif present, Hamza is present. जी Halima is present. Halima हो ना? जी زه شوم حلیمه زما په خیال Yes, sir. تاسو ته سیګنل سمسله ده تاسو وزیری وشولا any problem وینو ما سوای ما ته وای بهرال دا لیکچر به هم اپلوډ شي او د دې سه ویډیوز تیر کال ما کړیو هغه ویډیوز هم تاسو سره شیر شي لینکس په صورت کې هغه تاسو کته شي صحیح ده کنه اوکے ٹھیک شو Sir, next week the physical class week पता नहीं लगेगा. नेक्स्ट वीक ना به هم دا क्लासेस बस دا से به جاری صحیح ده کنه دا बस नेक्स्ट वीक में भी और लास्ट वीक भी सही था का ना और बे एग्जाम बंदोबस्त को सही शो सही है. फिलहाल चिकम देन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Okay. थैंक यू अल्लाह हाफिज़